Okay. Try a face with fish eyes. Meenakshi. Mean means a fish. Mean means a fish, Fish. and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish. Look like a fish. यानी उसकी आंखें Fish. कैसी दिखती हैं? फिश की तरह. Fish कैन की यू तरह. थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज? ऐसे आइज के लोग को देखो हो तुम? Anywhere in your family, yeah, any neighbor, village, anyway. ड्राई फेस विथ फिश आइज. एक फेस को आपको ड्रा करना है अपने कहाँ? नोटबुक में, कॉपी में. ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट. Fishes can have very different sizes. The smallest fish is about 1 centimeter long. 1 centimeter is, it means 1 cm, centimeter. Very small units, na? Okay. Okay. Just. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Join होते जाओ. Good morning. Good morning, बोलो. sir. Okay. Come to the point. Good morning, sir. Come to the point. Fishes can have very different sizes. The smallest fish is about. The smallest fish कितने की कैसे है? One cm, 1 centimeter. Just I ask you, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, how long is the biggest fish? You can imagine. थोड़ा कल्पना करो, imagine सोचो कि तुमने कितनी बड़ी मछली देखी है. 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? Just imagine. Imagine करना है हमें. Suppose आपने 1 मीटर या कितना हो गया? लाइट जला दो. 15 सेंटीमीटर. बंद कर दो. भैया घर पे रहो. यानी इक्वल टू हाफ मीटर. क्लास खत्म हो 1/2. Don't talk. अरे पापा. अब आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है. How long is the biggest fish you can imagine? भैया Yes. हमने यहाँ. What is the difference between big fish and a smallest fish? 50 centimeters. The big fish. Biggest है 50 cm. Just imagine. What is the difference between biggest fish and a smallest fish? Just 50 minus 1 is equal to what is difference? 49 cm. Right here, 49 cm. Next question is how many times longer is your big fish than the smallest fish? 49 cm. Between this 49 लिखोगे. अब आइए. The biggest fish is the whale shark. Whale shark पढ़े नाम सुने हो whales का? Yes, sir. Yes, sir. It is actually not a whale, but it is a big fish. Whales are different from fish. Whales. What is the difference between fish and whales? Whales breathe like through their noses. Whales जो हैं उनके नोज होते हैं, उसके द्वारा ये अपनी सांस लेते हैं. But fish have no noses and they breathe in water, not air. Whales give birth to babies. Whales जो है babies birth क्या करते हैं? Babies को जन्म देती हैं. But fish lay eggs. लेकिन मछली जो है वो क्या करती है? अंडे देते हैं. ठीक है. Whale shark fish look big and dangerous, but it is quite harmless. It does not attack a humans. Humans body पे कभी अटैक नहीं करती. Never. Sometimes. Okay.
अब आइए come to the point. One whale shark was long and 80 meter. म्यूट करो. उत्कर्ष. Yes. One whale shark was long as 18 meter. कितना? 18 meter. Just think how long that is. Almost 12 children of your size, standing one on top of the other. Suppose 12 बच्चों के एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए, तो जितनी लंबाई टॉप 1 by 1 होगा उतनी लंबी. Just imagine one on top of the other, and guess what is the weight? Well, much सर more इसे than लिखना भी है. but 12 of you together. Weight was about 16,000 kg. How much? 16,000 kg. नहीं मिलेगा मोबाइल में. नाम मिला रे का शंकर के लिए हम दिया नहीं. करना मिला नहीं पापा. अरे हम खुद ले वाले. सर इसे लिखना भी है. हाँ. सर इसे लिखना भी है. Yes. सर कॉपी में. Yes. Well shark 18 meter long. Weight कितना है इसको दिया गया है. How much? Its weight is 16,000 kg. Just how much? 16,000 kg. About how many kilogram do you weight? आपका weight कितना होगा? Suppose that an average is सर मेरा weight 35. Okay. सर 30 मेरा. Okay. Average मैंने निकाल दिया. Your weight is 35 kg. How much? 35 kg. So 12 children like you put together will weight about how much? Just multiply 12 children. 12 multiplied 35 is equal to 420 kg. And what is the weight of whale? 420 kg. About, अब आपसे पूछा जा रहा है about how much more does the whale shark weight than 12 children like you put together. सब कुछ रख दिया जाए तो कितने के डिफरेंस आएगा? तो your weight is 420 kg and और शार्क का कितना है? whale का whale weight 16,000 sorry 16,000 और आप सभी 12 चिल्ड्रंस का वेट 12 मल्टीप्लाई 35 मैंने एवरेज वेट रख लिया 35 420 kg. जस्ट माइनस इट 420 kg 0 8 5 5 1 kg यानी 15,580 kg more weight comparison of your 12 children. Okay. Next, the fish tail. Tail means to see the difference between whales and fish, look carefully. Here is figure in your math magic books. इसे ध्यान से देखो. At their tails, इनके tails को, पूंछ को, can you see that the fish tail stand flat along its body, but the tail of the whale
किसकी पूंछ? वेल की। ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स, ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स, दो पैरों की तरह दिख रही है। जस्ट कैन यू स्पॉट द फिश इन दिस पिक्चर? यहाँ देखो, two fishes are here, there, and one whales in picture. A school of fish. A school of fish. Fish like swim together in the sea in a big group. एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, called school of fish. In their school, आप भी स्कूल आते हो? Yes, sir. या यहाँ क्या होता है? So many students here. Yes, sir. उसी तरह पढ़ाई से स्टडी small होती है fish सर। होती हैं, वो एक ग्रुप बना लेती हैं जिसमें बहुत सारी मछलियां फिशेज होते हैं, उसको हम स्कूल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल फिश। School of fish. स्कूल ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ बिगर फिश। क्या होता है इससे? इन देयर स्कूल दे फील सेफ, केवल वो महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं एक साथ रहते हुए। फ्रॉम द बिगर फिश, अपने से बड़ी मछलियों से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? Yes, sir. यस। Yes, sir. At present, Yes, sir. where are you? House. Okay. अब आइए, to scare away the bigger fish. Scare away the bigger fish. बड़ी मछलियों की। Some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. छोटी मछलियां क्या करती हैं? अपने आप बड़ी मछलियों के डर से अब ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा क्या कर लेती हैं? पानी पी लेती हैं और अपने आप को क्या कर लेती हैं? जस्ट लुक लाइक ए बिग फिश। जस्ट ए पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर, बड़ा कर लेती हैं। एंड थर्ड पिक्चर इज कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट पिक्चर फिश एंड थर्ड पिक्चर। देख रहे हो बड़ा हो रहा है। अब आइए, आपके लिए होमवर्क है, जिनसे यूज दिस शेप टू मेक ए ड्राइंग ऑफ फिश। आपके पास सम ड्राइंग है, क्या क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवर, हार्ट, कोन, आर्क या सेमी सर्कल बोल सकते हो। इसकी मदद से क्या क्या बना सकते हैं आप? लिसन टू मी, लॉबस्टर, गिल, रेड स्नैपर, ये सारे जो हैं फिश या सी एनिमल्स हैं। क्या है? ऑक्टोपस, सी एनिमल्स, या क्लैम, पैरट फिश, प्रॉन, कैटल फिश, स्क्वैड, क्रैब। क्रैब मींस क्रैब देखोगे? देखे हो? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, which of the sea animals have you seen before? जिसको आपने देखा है, इन मछलियों को क्या क्या देखे होगे? पैरट फिश, आई थिंक पैरट फिश, प्रॉन देखे होगे आप, क्रैब देखो होगे, ऑक्टोपस तो नहीं देखे होगे। No, sir. देखे हो ऑक्टोपस? No, sir. No, sir. नो। No, sir. अब आइए। No, sir. ओके, कोई बात नहीं। नाउ No, sir. फिशरमैन, हो जाए फिशरमैन, मछुआरा जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनके बोलते हैं फिशरमैन। Fisherman. in their boats. How many of you have seen a sea? आप लोगों में से कितने लोगों ने समुद्र देखा है? Anyone? What is your name? Yes, sir. Where? Yes, sir. सर मैंने कहाँ देखे हो समुद्र? सर मैंने कब कहाँ देखे हो? गोवा में। गोवा में। आयुष? गोवा में। मुंबई में। सर मुंबई में। कहाँ? सर दिल्ली में। दिल्ली में सर सी मुंबई है? में। वाह। दिल्ली में कोई सी सर नहीं। मैं नहीं देखा हूँ। सर मुंबई में। सर मुंबई में। बात कर रहा हूँ। ओके, गोवा तो ठीक है, बट
आप दिल्ली में कर रहे हो, इट इज रॉन्ग। सर मुंबई। मुंबई, यस। यस सर, मैं भी ओके, मुंबई में रहा। वेयर डिड यू सी? डिड यू सी इट इन ए मूवी या फिर रियल? कुछ लोगों ने रियल में देखा होगा और कुछ लोगों ने मूवी या सीरियल में देखा होगा। हाउ डू यू थिंक द सी कुड बी? सर मैं फाइंड रियल आउट। में देखा हूँ। ओके, ठीक है। आप कोई मूवी में देखा होगा, कोई रियल में देखा होगा। जो रियल में देखे होंगे अच्छी बात है। डू यू नो हाउ टू स्विम? कैसे तैरते हैं? हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? तुम्हें डर लगता है जब समुद्र की लहरें, जो भी जब समुद्र के किनारे गया होगा, ठीक है, देखा होगा, तो उसमें वेव्स उठते हैं, धारा, करंट, ठीक है, यस सर। बहुत यस तेज। सर। अब आपको इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन इट। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। कितना ऊंचा उठ सकती हैं वेव्स? हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? 1 मीटर, 2 मीटर इन नॉर्मल? एक बात जान लो, जब फुल मून होता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, फुल मून जब होता है उसका इफेक्ट सी पे सबसे ज्यादा पड़ता है। उस समय वेव जो होते हैं बहुत ही हाई लेवल पे होता है, नियर अबाउट 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक। एंड नॉर्मल डे अगर फुल मून नहीं है तो 1 मीटर टू 2 मीटर, नो मोर देन, ठीक है। राइट ईयर 1 to 2 मीटर, ठीक है। Imagine, just imagine that there are fishermen in their boats going up and down, up and down. कैसे होते हैं फिशरमैन? सब समुद्र में जाते हैं, in their boats going up and down with their waves. Waves के साथ ही कभी अप होती हैं, कभी ऊपर उठता है, कभी डाउन होता है। With the they start their trip when it is still dark. कब अपना स्टार्ट करते हैं ट्रिप? जब अंधेरा रहता है तभी। And some go on simple boat made from logs of the wood tied together. लकड़ी के लंबे लॉग से एक दूसरे को क्या करते हैं? टाइड, एक दूसरे से बांध देते हैं और लॉग बोट्स तैयार कर लेते हैं। कौन सा बोट्स? दिस टाइप ऑफ बोट्स, लॉग बोट्स, ठीक है। If the sea is rough, log, okay. If the sea is rough, जब समुद्र का रुख जो होता है बहुत ही खराब होता है, with very high tides and a strong wind, सी में जब बहुत ज्यादा तेज हवा और वेव्स, जो तेज हवा होगा तो वेव्स भी होंगे, हाई वेव्स होंगे। Then these fishermen have a very difficult time. वो समय क्या होता है फिशरमैन के लिए? वेरी डिफिकल्ट समय होता है जब समुद्र में क्या आता है, कोई स्टॉर्म, तूफान, जैसे अभी आया था, ठीक है, जस्ट वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है, दिल्ली में। यस। अब आ जाओ, लॉग बोट देख रहे हो पिक्चर में? This log boat don't go very far. लॉग बोट बहुत दूर तक नहीं जा पाता। If the wind is helpful, अगर हवा इनकी हेल्पफुल में, मददगार में है, यानी सपोर्टिंग में है, they travel about 4 kilometers in 1 hour. लॉग बोट्स कितने जाते हैं? 4 hours in 1 kilometers in 1 hour. Yeah. किसको बोलते हैं जो ज्यादा कुकू करता है? How much? कब? जब नेचर फेवर में हो, विंड फेवर में हो, तब ये 4 किलोमीटर। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे जस्ट राइट हियर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
टाइम इज इक्वल टू, आपसे टाइम पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो, टाइम इज इक्वल टू 2.5 hours. 1 minute distance by speed. ओके, अब देखो आपने निकाल लिया, गुड। हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। स्पीड क्या है, बस बस ब्लॉक बोर्ड से स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर बाय टाइम हमें फाइंड आउट करना है 10/4, यानी हमें डिवाइड करना है 10 को 4 टू जा 8 2, यानी क्या हमारा आंसर आया 2 कंप्लीट 2/4। 2/4 को हम रिड्यूस कर सकते हैं बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 कंप्लीट 1/2, 2 1 जा 2 2 एंड 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया रिड्यूस करने पे, यानी 2.5 आवर, 2.5 आवर जो आपने निकाला था सही है, 2.5 आवर। अब गेस, आप गेस कीजिए, हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। अगर आप तेज चलते हैं तो 1 घंटे में कितने दूर चल सकते हैं, बोलो हर्षिता, उत्कर्ष। अगर आप फास्ट चल रहे हो तो 1 घंटे में कितना चल लोगे, कितनी दूर जा सकते हो, 5 किलोमीटर सर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ओके सर 5 किलोमीटर ओके, बस गेस करना था, राइट हियर 5 किलोमीटर, ठीक है, कितना 5 किलोमीटर। अब आइए, इन fisherman can feel the wind and look at the sun to find out which way to go, which way to go, क्यों, which way to go, many of us would get to lost and not be able to find our way on the sea. Why? Because where you only see water and anything else, सिर्फ पानी के अलावे समुद्र में कुछ नहीं दिखता, कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिखता कि वेयर इज ईस्ट वेयर इज वेस्ट। तो जो फिशरमैन है वो किससे फाइंड आउट करते हैं, बाय सन के द्वारा, सूरज की रोशनी देखते हैं कि सन, वेयर इज सनराइज, इन ईस्ट साइड, तो पता चल जाता है सनराइज हो रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है कि दिस साइड इज ईस्ट, ठीक। अब आपसे पूछ रहा हूँ, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इज इट्स राइजेज, किधर राइज होता है, सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट, राइट हियर इज फ्रॉम वेयर you are, what interesting thing do you see to your east, जहाँ तुम हो ये चीजें क्या दिखती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सनराइजेस, अगर सुबह उठते होगे तब, है ना, सुबह उठ जाते हो बिफोर सनराइजेस, नहीं, फर्स्ट थिंग क्या देखते हो, सनराइजेस, ठीक है। ईस्ट में आप नेम 2 थिंग्स दैट दे आर लेइंग टू योर वेस्ट, वेस्ट में क्या होता है, सनसेट्स, पश्चिम दिशा में क्या होता है, सनसेट, आप एक तो हो गया, दूसरा सेकंड में हम लिख सकते हैं लास्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री गुजरात इज सिचुएटेड, गुजरात जो है, ठीक है,
नेम टू थिंग दैट वेस्ट। क्या स्थिति है? एक तो हो गया सनसेट, दूसरा हो गया इन वेस्ट गुजरात, लास्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इन वेस्ट साइड पश्चिम में सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सा स्टेट है? गुजरात, ठीक है, ये भी देख सकते हो। अब आइए, व्हाट ए कैच आउट ऑफ द सी, silent please, yes, listen to me. Out on the sea, fishermen look for a place where they find a good catch of fish. माने ट्राई करते हैं क्या हमें कहाँ अच्छी मछली मिल सकती है ज्यादा, ठीक है। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, वहां पे अपने क्या करते हैं? नेट्स को, जाल को फैला देते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मेनी आवर्स, बहुत देर तक इंतजार करते हैं, घंटों इंतजार करते हैं फॉर द फिश टू कम इनटू देयर नेट्स, जब फिश जो है उनके नेट्स में आ जाएं। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स, यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। सम बोट्स हैव मोटर्स and go further into the sea. Sir, or boat or yeah, log boat or boat and yeah. Some boats have motors and go further into the sea. कुछ बोट ऐसी होती हैं जो जिसमें मोटर लगा होता है और वो बहुत दूर तक समुद्र में जा सकती हैं। Since they go far out, they can catch more fish. इसके चलते वो क्या कर बहुत ज्यादा मछली पकड़ पाते हैं। More. Yes. These boats travel faster at the speed of about 20 km/h. अभी हमने लॉग बोट का स्पीड 4 किलोमीटर देखा था, बट मोटर बोट 20 km/h, ठीक है। यस, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ फॉर यू डू द मोटर बोट्स गो इन 3.5 hours? 3.5 hours. यस, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि मोटर बोट्स मम्मी बोलना नहीं है। सर ये बोट 1 hour 20 किलोमीटर ले जाते हैं पर आवर्स। अब क्या पूछा जा रहा है? हाउ फॉर यू डू द मोटर बोट्स गो इन 3.5 hours? 3.5 hours, यानी यहाँ हमें से क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई व्हाट? टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है, इट मीन्स स्पीड मल्टीप्लाई टाइम्स। स्पीड क्या है बेटा? 20 किलोमीटर। स्पीड इज 20 किलोमीटर, 20 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3.5 hour। 3.5 पे लिख सकते हो, 3.5। अब जस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 20 × 3.5, 0 5 2 जा 10, 0 3 2 जा 6, 0 0 6 and 7। पॉइंट कहाँ है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दिए। इट मीन्स 70 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। इसे आप लर्न कर लेंगे, फॉर्मूला राइट है। पहले इसे लिख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इससे पहले भी मैंने आपको लिख दिया था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड।
Speed. यहाँ नोट कर रहा हूँ, नोट कर लो फिर से अगेन। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, यहाँ हमें क्या निकालना था? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। What is the speed of motorboat? 20 kilometer. And what is the time spent? 2.5 hours. Just multiply it. 3.5. What do you get? 70 kilometers. Okay. Next question. How much will time will they take to go 85 kilometer? साले सर देख रहे हैं इसको। सेम है। अरुण मामा। Motorboats 20 kilometer. Next question. How much time will they take to 85 kilometer? यहाँ क्या है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? टाइम। हाउ मच टाइम? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? टाइम इज इक्वल टू, मैगी लेते हैं ना, आज हमको मैगी खाने का मन है। अभी हमने बताया था डिस्टेंस बाय स्पीड। Distance by speed. Just what is the distance? 85 kilometers. How much? 85 by what is the speed? 20 kilometers per hour. Divided 85 divided by 20. 25. हल्के है। 24 जा। सारा क्लास में पढ़ेंगे। पॉइंट लिए हमने क्या किए था? 0 लकी भैया। लकी वाला है। 10 0 ले सकते हैं। यानी 4.25। हम इसे आवर्स में लेना है। हम लिख सकते हैं 1/4 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट yeah, here is the picture of motorboat. But the fishermen are now very worried. Why? Why worried? There are some very big machines, boats, travelers. बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, इसका नाम क्या था? ट्रैवलर। In the business, they go for out the put their big nets in the sea. समुद्र बहुत दूर अंदर जाते थे गहराई में और अपने नेट्स समुद्र के अंदर। This way they collect a whole lot of fish. जितनी भी मछलियां उन्हें मिलती थी उन्हें सारे सबको कलेक्ट कर लेते हैं। Living very few near the sea, so सब गाना बजा stay दिए out on the sea for many days. सब लोग गाना बजा दिए हैं सर लोग। Where? कौन गाना बजा दिया है? हर्षित, stop it. These big machine boats also catch the small baby fish which have yet to grow up.
छोटी मछलियों को पकड़ लेते थे जो ग्रो अप होती थी बट धीरे धीरे बड़ी होती थी. Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. जो फिशरमैन थे उनके नेट्स ऐसे बनते थे कि छोटी मछलियां भी जो है उसमें से पास आउट हो जाती थी, निकल जाती हैं. ठीक है. एंड गो टू सी फॉर ग्रो अप. द चूज ए नेट साइज इन सच वे दैट ओनली ग्रो अप फिश आर कैच. वैसे नेट को चूज करते थे फिशरमैन कि उसमें बड़ी मछलियां ही कैच हो पाए और छोटी फिश क्या हो, पास आउट हो जाए. दिस नेट्स एंड गो इन टू समुद्र. For hundred of years, fishermen have cared for the sea. सालों से fishermen care करते हैं समुद्र का. And its fishes and fish only a little to eat and sell. थोड़ी सी मछली पकड़ते हैं किस लिए? अपने खाने के लिए और थोड़ी सी बेचने के लिए. अपने They say that its traveler catch thousands of kilogram. Traveler जो है traveler boats catch thousands of kilograms of fish every day. यानी हजारों किलोग्राम मछलियां पकड़ते हैं every day, प्रतिदिन. There will be no fish left in the sea. और कोई भी fish समुद्र में नहीं फेंकते हैं. Why? For business view. Which boat gets how much? In one trip, the log boat brings about 20 kg of fish. Log boat है only 20 kg. And traveler